दिस इज गौरव और टुडे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि दैट इज नोन एज वैलेंसी, राइट। वैलेंसी हम लोगों को बचपन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते आ रही है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हम लोगों का चैनल बाय फ्रेंड लर्न, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों कर दीजिए, क्योंकि हम लोग लाने वाले ऐसे ही बहुत सारे मजे मजे की वीडियोस, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी को बचपन से हम लोग रट्टा मारते रहे हैं कि यार ये जो है ये दिस इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है कि H2O। एंड व्हाट इज H2O? ये वाला जो चीज है इसमें के साथ वैलेंसी का क्या ताल्लुक है? तो एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर देता है। अब वैलेंसी का जो मतलब है यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इट मींस ये जो है इसका, मान लो कि मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे दो हाथ हैं, मैंने दोनों हाथ से पकड़ के रखा है दो हाइड्रोजन को। सो दिस ऑक्सीजन इज होल्डिंग टू हाइड्रोजन्स इन इट्स आर्म। मतलब अगर हम लोग इस ऑक्सीजन को अलग तरह से देखें, देन द ऑक्सीजन will have two arms. That two arm will help to adhere the hydrogen with it. ये हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हाथ हैं? हाउ मेनी हैंड्स डज ऑक्सीजन हैव? टू हैंड्स. सो इट कैन होल्ड two electrons of oxygen from both of its side, right? And now in case of hydrogen, in both this side, every hydrogen has a single hand, so it can make a pair or it can handshake with another oxygen from both these two sides, right? This hydrogen will handshake with one hand of electron, one hand of oxygen, and this hand will handshake with another hand of oxygen. So how does we determine what is a valency and how does the valency in these cases takes place, right? So let's move forward to see what is actually a valency. Now all we know that there is a particular electronic configuration which we can determine by the proton numbers or atomic number of a particular atom, right? Now suppose I have taken in here oxygen. This one is known as the atomic number, this is known as the atomic number, and 16 this is known as the atomic mass. So हम लोगों का जो काम है, हम लोगों का यहाँ पे एटॉमिक नंबर को लेके काम है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z, हम Z से एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। Z कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 8, and this particular 8 will be divided into two sections, that is 2,6. These two are basically, this one is from first orbit and this one will be from the second orbit. Now what would happen? Let's draw a structure, right? This is our oxygen's nucleus. This is the first shell, that is known as K, and this is the second shell, that is known as L. So in these two cases what we will have? We will have two electrons in the K shell, that is the 2, and then in L shell we will have 6 electrons from these from this particular orbit. We can have 6 electrons, right? But हम लोगों को ये पता है, we know that to complete the octet we need 8 electrons. So oxygen requires two more electrons in its last shell to get a stable structure. इसका nearest stable structure क्या हो सकता है? Neon 10, that is 2,8. So but in case of oxygen we have 2,6. So there is a basic difference of 2 electrons from
basic difference of two electrons in these two elements, right? So these two electrons will be taken from somewhere else by the oxygen. So what could happen in this section, that the number of electrons that are present in this particular orbit, that is the last shell, these electrons will be known as the valence electron. These are known as the valence electron, and the last shell is known as the valence shell of an orbit. So what happens, that it requires 8 electrons, but in here we can find that it has only 6 electrons, so it would require 2 more electrons, right? So the number of valence electrons, if we consider the valence electrons as n, then the number of valence electron in this section will be 6. But what could happen if we want to judge the valency? The valency will be known as 8 minus n. This is our formula, valency. In this case of non-metals, oxygen एक non-metal है, right? Then the 8 minus n, that is कितने सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है. So 8 minus 6, that will be equal to 2. And as we are acquiring 2 electrons from outside, हम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, that's why यहाँ पे this will show a negative valency in this case. So let's move forward. कैसे काम करता है देख लेते हैं valency. So हम लोगों को ये चीज पता चल गया कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये डिटरमाइन करता है कि ये वाला एलिमेंट कितने सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, कितने और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है. हालांकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने वो जज कर लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को और चाहिए. तो अब किस तरह से होगा ये वाला चीज देख लेते हैं. इसमें हम लोगों को ये वाला चीज पता चल चुका है कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. मैं सिर्फ लास्ट शेल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट its octet, it would require 2 more electrons from outside. So what would happen, it would take 2 extra electrons from hydrogen. Now hydrogen has an atomic number of 1, hence this will be categorized as 1 in the first orbit. But hydrogen, what we know that in the first shell there can be 2 electrons. So hydrogen has to take 1 electron from the oxygen. In this particular section, if this is the orbit of the hydrogen, then there's 1 electron. I have given it a cross to understand or demark the 2 different kinds of electrons of oxygen and hydrogen. And in this section, the thing is also the same. Now what would happen if oxygen takes these 2 electrons? Now let's count. Oxygen has 6 electrons in its outermost shell. Now in here there's 1 electron in here and there's another 1 electron. So कितना हो गया ऑक्सीजन का? 1 2 3 4 5 6 7 8. So oxygen completes its octet. अब ऑक्सीजन का नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ये नियॉन 10 जैसा बन गया. So हम लोगों को वैलेंसी की क्या जरूरत है? वैलेंसी, why we require valency? We require valency to combine with different atoms from different sides of a particular element, so that we can achieve our octet. Now in case of hydrogen, look at that. In here oxygen is sharing 1 electron from hydrogen.
In here, these pairs are known as shared pairs. These are known as shared pair of electron. So oxygen and hydrogen are sharing a pair of electron in this case, right? So in this case, the pair of electron will help both of these two molecules, I mean to say oxygen and also hydrogen. So oxygen and also hydrogen will share this electron and will form a particular thing known as a bond. There will be a force of attraction between them. In our next classes, we will be discussing about the bonds. What are the different types of bonds? So in valency, what we have understood, the last shell would contain the valence electron that would determine the valency of a particular element. And now in this case, in case of hydrogen, we will have a single one electron. In here we will have another electron. In case of hydrogen, hydrogen has to complete its duplet. Now what is a duplet? Duplet means as hydrogen has only K shell, it requires two electrons to achieve the next electronic configuration of helium. हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अब हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए इसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी. मान लीजिए ये हाइड्रोजन है. देन उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगा, बोला कि भाई मुझे दे दे, मैं तेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ. देन दे फॉर्म a particular bond. So that's how H2O is formed in this case. Now let's see in case of another compound such as carbon, right? So carbon has an atomic number of C6. So C6, we can see that the electronic configuration is 2,4. इसमें क्या होता है कि 2,4, 6 को हम लोग इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं 2,4 के हिसाब से. अब जो चीज है, हम लोगों को ये वाली चीज देखनी है कि यहाँ पे जो चीज बन रही है वो चीज ये 2,4 जैसे लिखा हुआ है, हम लोगों को इसी को कंफर्म करना है. तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो पहले शेल में कितना आएगा? 2. ये हम लोगों का बन गया न्यूक्लियस. के शेल में आया 2, एल शेल में आ गया 4. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन C6 का कितना वैलेंसी हो गया? फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट डिनोट्स 4 वैलेंसी फॉर द कार्बन. नाउ अब क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेकेंड शेल से हम लोगों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो अब क्या, उसने 4 और इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से उधार ले लिए. अब हाइड्रोजन का भी देखो यहाँ पे बन रहा है 2-2 करके इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे बन चुका है. तो हाइड्रोजन का भी 2 शेयरिंग हो रहा है, तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पे भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन का 2 शेयरिंग करके. तब जैसे बन गया कि हाइड्रोजन का 2 शेयरिंग कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1 और ये कार्बन का 1 यूज कर रहा है, ये कार्बन का. सो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. दिस वन विल बी नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. नाउ लेट्स सी इन डिटेल that how a particular valency would work, right? इसमें हम लोगों को जो चीज देखनी होती है कि जैसे कि मान लो this one in this case, right? Suppose a valency कैसे डिटरमाइन करें? डिटरमाइनिंग valency determining, right? Sorry for the wrong working of. Now valency determine हम लोग कैसे करें? 1 से 4 तक
लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अप टू कार्बन, हाइड्रोजन टू कार्बन मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। इसका लास्ट शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका एक, हीलियम का होगा 2, लिथियम का होगा 1, बेरिलियम का होगा 2, बोरॉन का होगा 3, कार्बन का होगा 4। तो यहां तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द वैलेंस शेल, द वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, valence electron up to 1 to 4. If the number of electrons in the valence shell is from 1 to 4, then the value of n will be 4, hence the valency will be plus 4, or the total number of electrons from 1 to 4 will determine its own valency. From 1 to 4, the number of valence electron will be the valency of that particular element. Suppose in this case I am having hydrogen. Now if it is hydrogen in here, what would happen? Hydrogen will show a particular valency of 1. So हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी होगा? एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, so हाइड्रोजन वैलेंसी will be 1. Now let's move for helium. हीलियम का कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, then its valency will be 2. Now कार्बन का लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4. Then the valency of carbon will be 4. As these are the donated electron, these are from metals to metalloid series, these will be denoted as plus, right? But in case of chlorine, let's say chlorine, let's say nitrogen, chlorine, etc. So what happens in this case? The number of valence electron, in this case, number of valence electron, नाइट्रोजन का क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल पे, नाइट्रोजन का हम लोग अगर देखें तो आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ पे 2,7, इसका होता है N7, that is 2,5. So इसका आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है? There are 5 electrons in the outermost shell. So what would happen? We will use the formula of V is equal to 8 minus N in this case. यहाँ पे N is the number of valence electrons. The number of valence electrons. कैसे करना है इसको? कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है. So N कितना हो जाएगा यहाँ पे 5. Hence V is equal to 8 minus 5, that is equal to 3. This is the process how we determine the valency in case of non-metals, right? These are non-metals and metalloid valency. Now, in this particular case, if we take carbon, the same formula can also be applied. 8 minus 4 is equal to 4, that's the valency of carbon. If we take silicon is 14, hence it is 2, 8, 4. The last shell will contain 4 electrons. The same formula will apply in this case. What would happen? The same formula in this case will be like this one. Silicon will have 4 electrons, hence V is equal to 8 minus N, that is 8 minus 4, that is 4. इसमें कितना वैलेंसी हो जा रहा है? 4. Now let's move on for the next one. If we take the valency of chlorine, if we want to consider the valency of chlorine, Cl17, अब कितना होता है यहाँ पे? 2,8,7 KLM. M शेल में कितना आता है? 7 इलेक्ट्रॉन.
तो क्लोरीन के M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 हो गया, 7 हो गया। नाउ ये अगर क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। मैंने क्या बताया था कि 1 to 4 तक वैलेंस शेल का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होगा। बट आफ्टर 5 to 8 what would happen? 5 to 8, in case of 5 to 8 we will use the formula of 8 minus n. So number of electrons यहाँ पे कितने सारे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। सो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, 8 minus 7 that is equal to 1। देखिए क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये वाला ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अब हाइड्रोजन आया घूमते फिरते, हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मैं तुझे एक काम करता हूँ, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, चलो मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ। सो अब देखो ये अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही खा सकते हैं, अपने दोस्त के साथ मील बांट के खा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिटरमाइन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। सिर्फ इसी पेयर को और इसके ओरिजिनल को कम हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया। तो ये था वैलेंसी के कुछ बेसिक्स। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं नोबल गैस से क्या होता है। हम नोबल गैस का भी इसका भी डिटरमाइन कर सकते हैं वैलेंसी कैसे है। लेट्स सी द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस क्या क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आर्गॉन ले लिया Ar18, तो इसका क्या होता है 2,8,8। तो लास्ट शेल में आर्गॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आर्गॉन के, ये आर्गॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन के कंप्लीट हो गए। अब जब इसका 8 पेड बढ़ चुका है and it has consumed all the spaces in its orbit, then it would never require any other electron. So it will not react with anyone. The valency 8 minus n will be, in this particular case, will be 8 minus how many valence electron are there? 8. That is the valency is 0. अब कैसे भी ले लो, आप मान लो नियॉन का ले लिया आपने, तो वहां पे क्या है कि 2,8। सो हाउ द वैलेंसी वुड वर्क, इसमें कितना है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, एंड दिस 8 इलेक्ट्रॉन विल मेक इट b into 8 minus 8, b is equal to 8 minus 8 equal to 0. The valency of the neon will also be 0, hence it will never recombine or never form any kind of product in normal cases, right? There are different cases, जैसे कि मान लीजिए xenon है, xenon normally नोबल गैस की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन ये भी कोई कंपाउंड बना देता है फ्लोरीन के साथ, HCF2 कर देता है, HCOF2 कर देता है, ठीक है, इस हिसाब से बनाता है। वो सब हम लोग जब बात की क्लासेस में देखेंगे 11th 12th में जाके, उसके बाद देखेंगे हम लोग एक के बाद एक अप्लाई करेंगे उसको। So that's how the valency works. That's how we combine our valencies. Now let's see how we can use the valency for formulation. Formulation, valency का formulation कैसे हो सकता है? मान लीजिए सोडियम, उसका वैलेंसी है 1 प्लस 1। अब क्लोरीन का वैलेंसी भी है कितना, प्लस 1। So chemical equation, writing a chemical equation, इसमें अगर हम लोग करें केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम का वैलेंसी कितना है, प्लस 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, माइनस 1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे निकल जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाता है, दैट इज NaCl।
क्या बन गया हम लोगों का सोडियम क्लोराइड। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। सपोज कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम लोग +4 की जगह यहाँ पे ये वाला जो चीज है यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को नॉन मेटालिक के हिसाब से पकड़ते हैं। दिस इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इन दिस सेक्शन वी विल डिटरमाइन CH4 कैसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन सपोज I am having a radical, इसको हम लोग CO3 2- बोलते हैं, तो इसका कितना हो जाता है -2। वैलेंसी सोडियम का कितना हो जाता है +1। वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना आता है, इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका कितना है 1। तो कितनी क्या बन गया हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बहुत अच्छी वाली, वो उसमें जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बाप रे बाप क्या लिखा है कैसे पता नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोजन का कितना है, सल्फेट का कितना है। जब हम लोग SO4 2- को देखेंगे तो उसका हो जाएगा -1, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1। इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन वी विल गेट H2SO4 दैट्स आवर सल्फ्यूरिक एसिड। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे एक बहुत मजेदार चीज, ठीक है, H2O। हाइड्रोजन का कितना है +1, ऑक्सीजन का कितना है -2। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल गेट अ वैलेंसी ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2O। सो इस तरह से हम लोग वैलेंसी को यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे मजे की चीजें हम लोग सीखेंगे जो बेसिक्स है। इसके बाद जो भी आप लोगों के IITs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस में रहिए, हम लोग एक के बाद एक चीज़ें बताते रहेंगे। इसके साथ साथ बायो का भी प्रिपरेशन है, फिजिक्स का भी प्रिपरेशन है, डिफरेंट काइंड्स के मैथ्स का भी प्रिपरेशन है, राइट। सो इसके बाद हम लोग जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम लोग सारे के सारे वीडियोस अपने इस चैनल पे डाल रहे हैं, तो आप फॉलो करते रहिए, कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही आप लोगों का। यहाँ तक कि हम लोग लाएंगे कि नीट में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम लोगों के ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। एवरी डे यू विल गेट अ न्यू वीडियो, राइट। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय।